1980 और 2024 में उतना ही डिफरेंस है जितना 1980 और 1936 में है। Did you find this to be actually true कि बाकी बहुत टैलेंट है पाकिस्तान में या कुछ बात को एग्जैजरेट करके प्रेजेंट किया जाता है? कंट्रोवर्शियल सवाल है। इंडियंस कोई भी काम कर रहे हैं, they're excelling at that. द बिलियन डॉलर कंपनीज, मोस्ट ऑफ देम, Where do you see this going with this whole AI thing? हम वो वाहिद जनरेशन है जो अपने माँ बाप से भी डरते थे और अब अपने बच्चों से भी डरते हैं। True that. Do you see कि चीजें बेहतर हो रही हैं पाकिस्तान के लिए और आम लोगों के लिए over the next 5 years? दुख होता है डेफिनेटली। माइंडसेट में क्या डिफरेंस मिलता है आपको इस्लामाबाद की यंगस्टर में और फैसलाबाद की यंगस्टर में? चाइनीज का एक मुहावरा है कि मे यू लिव इन इंटरेस्टिंग टाइम। ये इतनी अच्छी विश नहीं होती, ये बुरी विश होती है। So let's take it from the top. Murtaza, where did this all begin? ये tech और business related जो journey थी आपकी, when was it that you realized कि this is what I want to do? How far back does this journey go and where does it start? Well, it all started in 2000, right? I started my software engineering degree, and within the very first semester, it clicked me that maybe I need to do something from now, right? And multiple उसकी reasons थी। कुछ reason ये भी थी कि coding इतनी पसंद नहीं थी, right? So a lot of people used to say कि coding is probably the best one out of any other field in software engineering. And I thought I might be a better salesperson or an analyst or a QA person, but definitely not coding. Right? So that you was didn't want to do the dirty work, as they say. Is it not considered the dirty work? It is probably the best work ever. But I was not very much inclined to it. Right? वो हम जब शुरू किया तो उस वक्त लगता था कि ये तो प्रिंस ऑफ पर्शिया और गेम्स वगैरह जैसी चीज़ें होंगी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, लेकिन इट वाज अबाउट कैलकुलस एंड हार्डकोर कोडिंग एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स, राइट? और मैं सोचा कि नहीं, ये मैं इतना एक्साइट नहीं होता इन चीज़ों से, राइट? एक्साइटमेंट किस चीज़ों से होती थी? यस, टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ने से होती थी, दुनिया के ट्रेंड्स के ऊपर होती थी, सेलिंग में होती थी। तो द फर्स्ट कंपनी वाज साइबर विजन इंटरनेशनल, व्हिच वाज अ मैगजीन. It was a magazine. Yeah. So I never knew that. So by the time I got into the second semester in my software engineering, I published the very first magazine. So this was literally the first brand that you ever conceived and created. Yeah. Cyber Vision. Right? So it goes all the way back. So right? दो तीन उसके पर्सपेक्टिव थे। एक तो ये था कि I wanted to do something which is कि जो मुझे अच्छा लगे, compared to coding and all. दूसरा ये था कि एक टीचर ने भी कहा कि मुझसे जॉब नहीं मिलेगी तुम्हें अगर तुमने अच्छी कोडिंग वगैरह नहीं की। तो मैंने कहा ये तो चैलेंज मिल गया है, अभी से कुछ करना पड़ेगा, राइट? और तीसरा आई थिंक कि आई हैड दिस एंटरप्रेन्योरियल थिंग इन मी, क्योंकि जब मैं मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वगैरह में था तो बड़े इवेंट्स वगैरह कराए और उसी से कोई फेयरवेल हो रही है, कोई वेलकम हो रही है, तो मेरे जहन में हमेशा ये था कि बी योर ओन बॉस. So this was basically from the word get go, you knew where you wanted to take yourself. It wasn't a gradual progression into entrepreneurship or mentorship for that matter. Never wanted to work for anyone else. Right. That's for sure. And you never have worked for anybody else either. कोई कभी job नहीं किसी भी तरह की नहीं की. Absolutely. Right. Interesting. Right. तो initial यही था कि I have to be my own boss and I have to do my own things. So Cyber Vision was your first magazine and it was curated by you and it was a university thing. Yeah, so it was not a university thing. I did it in university, लेकिन it was my thing. और उसमें ये था कि एक आइडिया ये था कि ज़रा PR भी सबसे अच्छी हो जाएगी. Teachers used to write in that magazine, right? I used to go find a lot of sponsorships, ads वगैरह, and then used to publish it. And I used to circulate it for free back then, right? और वो फिर वो 8-9 issues उसके निकले. And by the time I graduated, Cyber Vision also evolved into a software company. Right. And that's how I know Cyber Vision now. Cyber Vision has been around for at least 2 decades, if I'm not okay. Or what does Cyber Vision do for the average Pakistani at the moment? So for the average Pakistani, Yeah, so we do some exciting things. For average Pakistani, we have a very big portfolio of digital trainings. Right. So right now in KP, in Sindh, in Punjab, we are training a lot of people on digital skills. So that has been a passion as well, and I think it's a service to the nation. And उसके अंदर हम digital skills virtual भी train करते हैं, on ground भी train करते हैं. Even जैसे कुरम और सही agencies जो newly merged districts हैं उनके अंदर भी हमने किया है. बहुत ज़्यादा फाटा region जो होता था previously. So वो तो एक है जो हम आप common man के लिए कहें. लेकिन we have been a
technology consulting company. So is CyberVision one of the only private or independent, companies doing this in that region, or are there others involved as No, well? I'm sure और भी लोग काम कर रहे हैं वहाँ? बाकी भी लोग होंगे. हमारा perspective ये है कि we are a tech company. Right. So we know a lot more that what to teach, whom to teach to, what impact do we want to create, right? So जब हम लोग लोगों को हायर करते थे तो हमें बहुत परेशानी होती थी टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग में, क्योंकि आपको शुरू में हर एक को ही ट्रेन करना पड़ता है. Until unless you are hiring people from the top tier universities. सो वो एक बहुत बड़ा गैप है. तो हमने वो स्किल के गैप को हमने कहा कि हम इसको ज़रूर केटर करेंगे, और स्पेशली आफ्टर कोविड. सो क्योंकि कोविड के बाद जो है ना ये रुझान भी आ गया कि लोग ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, इट्स ईजी टू ट्रेन पीपल. तो फिर वी गॉट इनटू इट, और वो अभी करंट And COVID के दौरान people also realized that there's a lot of potential in getting people to work from wherever they are. तो इसमें remote work को भी आप लोग टच कर रहे हो कि यहाँ से बैठ के लोग बाहर के लिए कैसे काम कर रहे हैं, या डॉलर्स कैसे लेकर आ रहे हैं, ऐसा कुछ है अपना portfolio में? हमारी 3 उसके अंदर कोर फोकस है. नंबर 1 तो ये कि इफ़ यू वांट टू फाइंड जॉब्स, तो बिल्कुल आप हमारी ट्रेनिंग्स में आएँ, आप स्किल को आप बेहतर करें और आप जॉब्स के लिए अप्लाई करें. दूसरा ये कि फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है. और फ्रीलांसिंग वही जो आप बात करें कि पाकिस्तान में बैठ कर काम करें और दुनिया से डॉलर्स लेकर आएँ. और तीसरा ये कि किस तरह आप ना छोटी सी बिजनेस बना सकते हैं. मतलब आप पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजी कंपनी जो हैं वो ऑनलाइन काम कर कर ही बनी है, ठीक है. कि पहले एक बंदा आया, दूसरा आया, तीसरा आया. साइबरविजन ने शुरू में जब हम मैगजीन से ट्रांजिशन किया था टू अ सॉफ्टवेयर कंपनी, तो दिस इज व्हाट वी यूज्ड टू डू एज वेल, राइट. सो वी यूज्ड टू गेट प्रोजेक्ट्स ऑन elance.com फॉर दैट मैटर. उस वक्त एक पोर्टल होता था आउटसोर्सिंग का, राइट. दिस इज Funny you mentioned that, because I used to be on Elance myself about 15-18 years ago. Yeah, then Upwork acquired it. So वो फिर हमें वो काम सिखाने का मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है, क्योंकि अगर मतलब इट्स अ गुड फीलिंग कि जब इन लोगों को हम सिखाते हैं एंड देन दे स्टार्ट अर्निंग इफ दे फाइंड अ जॉब, तो वो एक हमारे लिए बहुत अच्छा एक मैटर ऑफ प्राइड होता है. And you always had this entrepreneurial, thing in you, and you also were somebody who likes divulging his learnings and his, experiences to other people. I know that firsthand. So CyberVision mentorship bhi karta hai, trainings bhi karata hai, and then CyberVision is also something of an incubator for startups and fresh ideas. हाँ जी, How did that हम come लोग about? मैनेज करते हैं 2 incubators. एक NIC इस्लामाबाद, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर इस्लामाबाद, और नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर फैसलाबाद. इसमें हमारे पार्टनर्स हैं, चेंज मैकेनिक्स है, हाशी ग्रुप है, फौजी फाउंडेशन है, फौजी फर्टिलाइज़र है. वो जो उसमें आए किस तरह, मैंने 2008 में एक वॉलंटियर काम करना शुरू किया था. एक तंजीम है जिसको टाई के नाम से जाना जाता है, द इंडस एंटरप्रेन्योर्स, टाई Islamabad chapter. हाँ, तो उसमें एज अ वॉलंटियर मैंने 7-8 साल काम किया, और उस चैप्टर को बिल्ड करने में बहुत रोल प्ले किया. उसके अंदर क्या करते थे, उसके अंदर हम स्टार्टअप्स को, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करते थे, लोगों को जो स्टार्टअप से उनको सपोर्ट करते थे. तो वो एक वॉलंटियर काम चला, और उसके अंदर मेरा जो है ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया. वो इंटरेस्ट इस तरह आया कि बड़ी खुशी होती थी जब मैं ट्रैवल करता था और लोग आके कहते थे कि जी हमने आपके प्रोग्राम में हिस्सा लिया था और अब हमने बिज़नेस बना लिया और हम ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं. एंड फिर ये NICs का प्रोग्राम लॉन्च हुए. मिनिस्ट्री ऑफ IT की एक ऑर्गेनाइजेशन है इग्नाइट के नाम से, राइट. सो दे फंड, वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स करते हैं. सो दे स्टार्टेड कमिंग अप विद दीस इनक्यूबेटर्स, राइट. सो now we are managing along with our partners जो NIC Islamabad और NIC Faisalabad. It's a great experience. Of course, I keep hearing about so many startups that you have personally, mentored and brought them to light. For somebody, क्योंकि अभी business, the whole landscape is changing. How people think, how people, invest themselves, how people start their businesses, how people find investments for their ideas. How easy or difficult has it become for anybody to come up with a great idea and then find the right tools and the right medium and the right guidance to actually do something about it? Yeah. Like, is it easier now, or was it easier in the initial stages of when you started this whole process? I think मैंने तो ये पैराडाइम शिफ्ट होते हुए देखा है. Right. जब मैंने 2004-2005 में एक्चुअल बिजनेस शुरू किया था, जो प्रॉपर सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई थी, तो उस वक्त और अभी के लोगों के माइंडसेट में बड़ा डिफरेंस था, राइट. एक तो ये कि आपके पास इंटरनेट की एवोल्यूशन नहीं थी, 3G 4G नहीं था, सेल फोन्स इस तरह कॉमनली अवेलेबल नहीं थे, बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड थी, कंसल्टिंग की सर्विसेज की अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड थी. और दूसरा ये कि यंगस्टर्स को इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता था, राइट.
और मुझे आई रिमेंबर कि मैं बहुत सारी मीटिंग्स में गया और वहाँ पर ना लोगों ने कहा कि भाई आप तो बहुत ही यंग हैं, आप तो अभी 22 साल के हैं, आप क्या बात करें, आपको नहीं पता, स्टफ लाइक दैट, राइट? सो इनकरेजमेंट भी थी बहुत सारे लोगों की तरफ से, लेकिन डिस्करेजमेंट भी बहुत थी, लोग डिस्करेज करते थे आपको। और यूजुअली लैक ऑफ एक्सपीरियंस की हाँ, वजह से और अगर आपने ये देखा, ये मेरी जो गोटी, ये उसी वजह से, ये मैंने उस वक्त Right. रखी थी कि आई वांटेड टू लुक ओल्डर, ठीक है? आई यूज्ड टू बाय क्लोथ्स जिसमें मैं लगता था कि मैं अपनी एज से थोड़ा ज़्यादा हूँ। अब Still ऐसा don't नहीं look है। too old, by the way, even with the goatee. But अब जो है ना, अब तो आई थिंक कि लैंडस्केप हैज़ चेंज्ड, और आपको जो है ना यंगस्टर्स को ज़्यादा वैल्यू मिलती है। लोग चाहते हैं कि यंग लोगों के साथ काम करें, नई आइडियाज़ के साथ काम करें। ओवरऑल पूरी दुनिया जो है ना वो एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटी बनती जा रही है, राइट? पहले आपका एक्सेस बाउंड्रीज थी, लिमिट्स थी, Yeah. लिमिटेशंस थी। अब तो आपने व्हाटएवर यू वांट टू डू, यू कैन थिंक अबाउट गोइंग ग्लोबल, व्हाटएवर यू वांट टू डू, राइट? लोग यहाँ पर बैठ कर अमेज़ॉन के लिए काम करते हैं, बाहर की कंपनीज के लिए काम करते हैं, आप अपनी सर्विसेज, अपने प्रोडक्ट्स को दुनिया के अंदर बेचते हैं, राइट? अब तो आपके प्लेटफॉर्म्स और कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा अच्छी हो गई, आपके ट्रैवल इतना ज़्यादा आसान हो गया। तो plus, I think landscape- societal level के ऊपर भी काफी mindset change हो रहा है. Because back in the day when I used to do freelancing on Elance, I used to make websites there, by the way. And for the first few years, I could hardly ever explain myself to anybody कि मैं कर क्या रहा हूँ. And but then of course when the money poured in, तब लोगों को समझ आती थी कि यार अच्छा कुछ कर रहा है, फिर पूछते थे कि यार क्या क्या कर रहे हो, अब मिलते नहीं हो, मैं पूरी रात काम कर रहा होता था, पूरे दिन में सो रहा होता था, सोशल लाइफ कोई थी नहीं, इवन घर वालों को भी पहले शुरू में ट्रस्ट नहीं था, बट व्हेन दे सॉ कि जी रिटर्न्स एक्चुअली हैं, मेजरेबल रिटर्न्स हैं इस काम के, तो फिर और अभी I've realized कि society level पे काफ़ी change आ गई as the whole startup culture is growing, how people are actually investing not just in people but in great ideas, and people are coming together to promote ideas, and incubation centers have popped up. अभी इस वक्त कितने incubation center काम कर रहे हैं इस्लामाबाद के रीजन में आपके ख्याल में? आई थिंक पाकिस्तान में अगर देखें तो जो अच्छे फुल ब्लोन इंक्यूबेटर्स होंगे वो 8-9 होंगे, राइट? अभी एट दिस पॉइंट टाइम, बट देन यूनिवर्सिटीज़ के भी अपने छोटे छोटे इंक्यूबेटर्स हैं, कोवर्किंग स्पेसेस हैं। तो लैंडस्केप तो डेफिनेटली, मतलब हमारी जनरेशन में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई ना, आई थिंक वी आर द ओनली जनरेशन। कल मैं किसी को कह रहा था कि 1980 और 2024 में उतना ही डिफरेंस है जितना 1980 और 1936 में है। ठीक है, और जब हम सोचते हैं कि 1936 के आपके परसेप्शन है ना, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट 1936? 2-3 गाड़ियां पुराना एक time शहर में लगता है होंगी, ये होगा, कैसे होंगे, So 80s हमारे लिए इतना ही AC नहीं होंगे, फोन्स नहीं थे, XYZ चीज़ें नहीं थी, राइट? एंड देन वी आर द ओनली जनरेशन जिसने टेक एवोल्यूशन ना इतने फास्ट पेस पर देखी है। Yeah. कि हमने अपने घरों के अंदर टेलीफोन, वो 2-3 घंटे के लिए PTV का आना, फिर STN का आना, और फिर वो हमारे म्यूजिक MCC चार्ट्स आना, ये हमारी Funny जनरेशन that you mentioned that. Right? क्योंकि I have a separate podcast about this whole thing, and we did our last episode was practically about this whole evolution of media and technology. From my perspective, obviously, क्योंकि मैं Gen X में आता हूँ, 70s का बच्चा हूँ मैं, और how we have seen the world change in front of our eyes, और हम काफ़ी confused भी होते हैं, हम miss भी करते हैं, but then we're also proud of what has become of the whole world. And you're right. You are one of the leaders in tech, and you've led this whole charge. और मुझे कोई real life examples बताएं, some startups that you've mentored, or somebody who's done really well, and they've actually made something of themselves. Yeah, it's exciting क्योंकि अब I have a 6 years old daughter, माशाल्लाह. और वो हम लोग एक जगह गए तो वहाँ पर एक हमारे टाइम का टीवी रखा हुआ था, तो The one in a box, or वो जो was it like a- बॉक्स टीवी, नॉर्मल बॉक्स टीवी, तो वो इतना परेशान थी, उसने कहा ये क्या चीज़ है, she knocked on that. Right. I was like, this is a TV. She was like, no, this is not a TV. TV तो वो दीवार पर होता है, इतना सा होता है. It's very This is flat. like, yeah, this is a big TV, right? So yes, absolutely you're right कि हमने वो evolution देखी, और उस evolution में जो from that घर का वो PTCL वाला फ़ोन to this phone and then apps and stuff like that, पाकिस्तान के अंदर जो है ना, आई थिंक कि हमारा जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है अब इवेंचुअली उस चीज़ से फ़ायदा उठाना शुरू हो गया। Right. ठीक है, जैसे यू विल फाइंड सम ग्रेट स्टार्टअप्स जो ग्लोबल लेवल के ऊपर इंटरवेंशंस कर रहे हैं। Right. ठीक है, मतलब अगर इफ़ यू टॉक अबाउट गुड सक्सेस स्टोरीज, तो यहीं पर लोगों ने क्लाउड मैनेजमेंट के टूल्स बना के $350 million के बेचे, राइट? Brilliant.
very nearby, there's a company which was acquired by Epic Games. Right? They have a great office over here, and उन्होंने हाई एंड ऑब्जेक्ट्स को 3D मॉडलिंग करने के ऊपर बनाया, यूज़ किया, और दे सोल्ड द कंपनी टू अ ग्लोबल प्लेयर, राइट. एंड ये जो है ना, ये अपॉर्चुनिटी बेस पाकिस्तानियों के लिए और हमारी जैसे नेशंस के लिए अब खुलती जा रही है. ठीक है. इन NICs जिनको हम इंक्यूबेट करते हैं, वी गेट सम वेरी इंटरेस्टिंग आइडियाज़, एंड दीज आइडियाज़ आर जो ग्लोबल लेवल के ऊपर स्केल कर सकते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल, हर एक को पता है कि कॉल सेंटर्स में आप कॉल करते हैं, आपको ना वो सबसे पहले सुनाया जाता है कि जी ये कॉल क्वालिटी के मेयार को बरकरार रखने के लिए रिकॉर्ड की जा रही है. राइट. ठीक है. एंड नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज हियर, राइट. सो वी हैव अ स्टार्टअप जो उन सारे कॉल्स का QA आपको जो है ना प्रॉब्ली 1/10 कॉस्ट के ऊपर करके दे देगा. Oh, that's amazing. Right. So this is and many other things जो इस तरह की अब लैंडस्केप के अंदर आ रही हैं. और कुछ ऐसे भी स्टार्टअप हैं. आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट वन जो लाहौर से तक घर पर हमने हमारा एक प्रोग्राम. I think I know घर पर. सो घर पर इट्स नीड ऑफ द आवर के लोगों को Anything that you need, ब्रिटिश जाते you call हैं at home. या दे कॉल ब्रिटिशंस होम, राइट. और वो हमारे एक प्रोग्राम के अंदर आए, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, दे कम्पीटेड, माशाल्लाह दे ग्रू टू अ वेरी साइजेबल स्केल. सो पाकिस्तान के अंदर अपॉर्चुनिटी तो अभी बहुत ज़्यादा है. ठीक है. और स्टार्टअप लैंडस्केप के अंदर अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है. टैलेंट है हमारा, एक्सपोजर नहीं है. अच्छा, ये बात अक्सर कही जाती है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है. तो डिड यू फाइंड दिस टू बी एक्चुअली ट्रू कि वाकई बहुत टैलेंट है पाकिस्तान में, या कुछ बात को एग्जैजरेट करके प्रेजेंट किया जाता है व्हेन इट कम्स टू न्यू एज टेक एंड न्यू आइडियाज एंड फॉरवर्ड थिंकिंग? कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल है, क्योंकि तो देखें टैलेंट मैं आपको बताता हूँ. देखें, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है. समबडी हु वेंट टू स्टैनफोर्ड, वर्क फॉर द बेस्ट कंपनीज, राइट, किस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करते होंगे वो, और उनका एक्सपोजर क्या होगा? ऑब्वियसली नेक्स्ट लेवल, राइट. नेक्स्ट लेवल, क्योंकि टेक इज समथिंग कि आप किस चीज़ के ऊपर काम करें. मतलब मिसाल नेचुरल टैलेंट है हमारे पास. आप एक मैकेनिक जो है, जो रक्शे को जो खुलता है, वो उससे आप मर्क को तो नहीं करा सकते ना. एक्सपीरियंस हुआ है, राइट. सो टैलेंट, नेचुरल टैलेंट, यस एब्सोल्युटली है. एक्सपोजर नहीं है, राइट. वहाँ पर हम मार खाते हैं. बट इज दैट रियली द ओनली थिंग कि हम लोग सिर्फ एक्सपोज, जब हमारा टैलेंट जब हो रहा है तो वाकई ग्लोबल लेवल पे कम्पीट कर रहा है? एग्जाम्पल देता हूँ, जिस तरह इंडियन टैलेंट है, इंडियंस कोई भी काम कर रहे हैं, दे आर एक्सेलिंग एट दैट. आर वी ऑल्सो एक्सेलिंग एट एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट वी आर सेटिंग आवर माइंड टू, और आर वी स्टिल इन्वेस्टेड मोर इन स्पोर्ट्स एंड अदर थिंग्स एंड kind of run-of-the-mill ideas and recycling ideas, or are we doing something original as well? देखिए, मतलब अगर आप इंडिया की स्टार्टअप इकोसिस्टम को दें, दे आर आल्सो रिसाइकलिंग आइडियाज, राइट. ठीक है. जो दुनिया में, US में इधर उधर जो होते हैं, द $1 billion कंपनीज, मोस्ट ऑफ देम, 90% इन इंडिया जो $1 billion कंपनीज हुई हैं, वो ऑब्वियसली रेप्लिकाज हैं कि वो किसी और मार्केट के लिए थी, मगर उन्होंने इंडियन मार्केट के लिए बना दिया. ठीक है. देन दे हैव ऑब्वियसली स्केल है उनके पास. लेकिन जिस चीज़ के अंदर हमने लैक किया, वो ये लैक किया है कि they started in tech in 1960s. ठीक है. We missed that boat. But also, they built some great universities. ठीक है. IITs के अंदर. Yeah, of course. They've invested a lot in their education system. Absolutely. तो their education, और वो जो level है universities का, वो बहुत different है. ठीक है. Compared to our tech institutes. So I think ये हमारे पास definitely एक space है जिसके अंदर हमने improvement करनी है. और अब I think बहुत सारे initiatives आ रहे हैं जो improvement की. So you see this actually happening. दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारा टैलेंट वापस भी आया इंडिया में, राइट. सो वो जो है ना, वो ग्लोबल कंपनीज में काम करते हैं, एंड देन दे बिल्ड कंपनीज इन इंडिया, दे ट्रेन देम, और दे सपोर्ट इन वन वे और अदर. ठीक है. पाकिस्तान का स्केल अभी छोटा है, लेकिन आई थिंक कि पॉजिटिव है. मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि हम पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री पर नहीं है. हम बिल्कुल पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री पर हैं. हमारा मसला अभी भी सप्लाई डिमांड का है, कि डिमांड अभी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम लोग क्या उस सारी चीज़ों को पूरा कर सकते हैं, उन सर्विसेज को दे सकते हैं, उस लेवल, उस क्वालिटी पर दे सकते हैं. यंगस्टर्स जो है ना, अब मैं जब यूनिवर्सिटीज़ में जाता था जैन 10 years बैक, राइट, ये जब मैं अपने वॉलंटियर काम करता था टाई के साथ, तो हम लोग ना जब स्टूडेंट्स वगैरह से बात करते थे, तो 90-95% स्टूडेंट्स यूज्ड टू से कि वी वांट टू फाइंड अ जॉब. ठीक है. Now you go to good universities, even if you go to FAST or NAS, SEEKS and all, and ask this question:
I'm Right. sure 80% will say now we want to do our own thing. Yeah. ठीक है, and they have this opportunity now and they're going for such opportunities. So times have changed. और ये जो है ना mindset, क्योंकि you know if you want to work, अच्छा उसमें होता क्या है, when you are working for someone outside Pakistan, obviously आप किसी तरीके से वो exposure तो लेकर आ रहे हो ना, राइट आप उस exposure से फ़ायदा उठा रहे हो. हाँ वर्क एथिक लेकर आ रहे हैं आप और बहुत सारी सेंसिबिलिटीज हैं जो आप डेली कम्युनिकेशन में आप सीख रहे होते हैं Yes. वो चीज़ें बिल्कुल टिक Yes. डाउन करती हैं Yes. आपके इर्द गिर्द तो और ये भी है कि फिर हमारे पास बहुत सारे जीनियस लोग भी होते हैं, यू नो, जो वो ऐसे लोग भी हैं, दे आर बिल्डिंग सम ग्रेट टेक ओवर हियर, दे आर एक्सपोर्टिंग आउटसाइड, दे डोंट इवन सेल एनीथिंग इन पाकिस्तान. The you know majority of the tech companies, I think that they only sell outside Pakistan. They don't sell in Pakistan. हाँ ट्रू दैट हमारे पास क्रिएटिव्स की भी कोई कमी नहीं है और टेक जीनियस की भी कमी नहीं है बट यू राइट अपॉर्चुनिटी पहले नहीं थी अब बहुत ज़्यादा है और उसको आई होप कि वी आर एबल टू एक्सप्लॉइट दैट. डू यू थिंक हमारे गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर को कोई और बिसाइड्स सेटिंग अप यू नो अ प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम वेयर दीज स्किल्स आर हार्नेस्ड फ्रॉम एन अर्ली एज उसके अलावा कोई ऐसे मेजर्स हैं आपके जहन में कि जो लेने चाहिए टू प्रमोट दिस होल यू नो इकोसिस्टम एंड दिस फॉरवर्ड वे ऑफ थिंकिंग इन पाकिस्तान? Absolutely. I think देखिए there's obviously the long term solution is कि आप पूरे एजुकेशन सिस्टम को रिविजिट करें, ठीक है, क्योंकि बच्चे की जो बिल्डअप है वो तो Yeah. यू नो नर्सरी से होगा. लेकिन शॉर्ट टर्म भी फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं. देखिए मुल्क हमारा बहुत बड़ा है, ठीक है, 25 करोड़ लोग हैं. सो यू नो इट्स लाइक तो अगर हमारा जो सबसेट भी लेना वो भी पता चलता है कि बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज से बड़े हैं, राइट. अब शॉर्ट टर्म उसके अंदर आई थिंक कि गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है. बहुत सारे आपके ट्रेनिंग्स के ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो आ रहे हैं, राइट. और मैं तो हर दूसरे दिन ही सुनता हूँ कि कोई और प्रोग्राम आ गया, कोई और प्रोग्राम आ गया. पीपल हु आर रियली सीरियस अबाउट यू नो एलिवेटिंग देयर लाइफस्टाइल्स और लर्निंग इन देयर जर्नी एंड यू नो enhancing their skills, they have a lot of opportunities. इसमें कोई शक नहीं है. Yeah, interesting that you actually say that. You have worked with youngsters, I would say youngsters from Faisalabad and Islamabad extensively. Mindset में क्या difference मिलता है आपको इस्लामाबाद के youngster में और फैसलाबाद के youngster में? Because in my past few years, I've traveled a lot extensively, you know, various parts of Pakistan, and I've realized that there's a huge difference between the way people think in our metro cities. KLIP Yes. or Yes. you know everywhere else in Pakistan. So ideas को you know harness करने में और अपने life को change करने के बारे में जो लोगों के जो objectives हैं या जो visions हैं, do you feel there's a lot of difference between you know a kid in Faisalabad and a kid in Islamabad? So I Are we think living in a bubble here in Islamabad like a lot of people think? मैंने and say? 3 जगह ज़्यादा काम किया. हाँ. पेशावर में, right, I built an incubator around Yeah. 6-7 years back, 7-8 years back, and then Faisalabad and then Islamabad. डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. मेहनती ज़्यादा नहीं है फैसलाबाद में? पेशावर में Controversial. I know controversial I चीज़ें think कहना पेशावर है. में सबसे ज़्यादा है. I Yeah, think so. yeah. I think they are really hardworking. They are very hardworking. They are very passionate. You know, they have a certain drive. फैसलाबाद के अंदर भी obviously you know ऐसा है. मेहनत बहुत करते हैं, ड्राइव है. इस्लामाबाद में इंटाइटलमेंट तो है ही है. वो है sense of entitlement, आपको तो ही है लग रहा है. इस्लामाबाद लेकिन इट्स लाइक आप दुनिया में ना जैसे आप चले जाएं तो यूएस में भी ऑब्वियसली न्यूयॉर्क और यू नो Of course. सैन फ्रांसिस्को का बच्चा डिफरेंट होगा और विस्कॉन्सिन का बच्चा डिफरेंट होगा, Absolutely. राइट. क्योंकि आपका जो वो इकोसिस्टम है वो क्या आपको प्रोवाइड कर रहा है. अगर उस इकोसिस्टम के अंदर प्रोग्रेस नहीं है, उस इकोसिस्टम के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, आपके अच्छे टीचर्स नहीं हैं, आपकी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें डेफिनेटली इम्पैक्ट करती हैं, ठीक है. फिर ये कि हमारे टियर 2 सिटीज़ के अंदर माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, राइट. सो फैसलाबाद से लोग लाहौर चले जाते हैं, absolutely. पेशावर से लोग इस्लामाबाद आ जाते हैं, आपके 2-3 सेक्टर्स तो भरे ही आपके लोगों से की पी से जो आते हैं. सो ये एक अगर इफ़ यू आर अपर मिडिल क्लास और आप अफोर्ड कर सकते हैं और आपने बच्चों को वैसे ही आप दूसरी का भेज देते हैं तो आपकी क्वालिटी सेंट्रिक बच्चे तो बहुत सारे मूव कर जाते हैं, राइट. सो ये एक डेफिनेटली छोटे शहरों के लिए एक प्रॉब्लम है. और मेरा ये ख्याल है, मैं पेशावर में भी ये फील करता था और फैसलाबाद में भी ये फील करता था, और जब मैं उधर की बिजनेस कम्युनिटी से मिलता था मैं उनको कहता था कि ये जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आप उस इकोसिस्टम यहाँ पर आपने एंटरटेनमेंट इकोसिस्टम, क्वालिटी एजुकेशन, ये सारी चीज़ें आप लोग वो कर सकते हैं, बना सकते हैं, राइट. लेकिन अगर वो भी अपनी इन्वेस्टमेंट दूसरे शहर में जाकर करेंगे कि वो लाहौर आ जाएंगे या इस्लामाबाद आ जाएंगे, तब फिर वो शहर आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाते हैं.
ट्रू। और छोटे शहर से बड़े शहर की तरफ माइग्रेशन भी और ब्रेन ड्रेन भी हमेशा से होता रहा है, बट देन फिर भी हमारी कल्चर की एक रवायत ऐसी रही है कि हम लोग अपने रूट्स के साथ अपना एक ताल्लुक हमेशा बना के रखते हैं. बट अभी इन द पास्ट फ्यू इयर्स we've seen a huge number of kids and talented youngsters moving out of Pakistan. So this brain drain that this country is facing right now, do you think this is a real challenge या ये exaggerated एक बात है, कोई बड़ा मसला नहीं है, नए लोग आ जाएंगे नए आइडियाज लेकर, तो कोई ब्रेन ड्रेन नहीं हो रहा पाकिस्तान में या हो रहा है? हाउ डू यू अगर आप शुतुरमुर्ग बनना चाहते हैं और अपनी गर्दन ज़मीन के अंदर छुपा लें तो मसला नहीं है, लेकिन मेरा ये ख्याल है जिस पेस से हो रहा है और जिस क्वालिटी से हो रहा है ये प्रॉब्लमेटिक है. देखिए पहले ये होता था कि पीपल यूज टू गो, जिन्होंने यूनिवर्सिटीज़ के लिए जाना है और वो बाहर सेटल हो गए और फिर बाहर पढ़े लिखे, वो फिर अच्छे डॉक्टर्स बन गए, अच्छे इंजीनियर्स बन गए, कुछ वापस आए, कुछ ने इन्वेस्ट किया यहाँ पे, किसी ने हॉस्पिटल बनाया XYZ, राइट. जो पिछले 2-3 सालों में ये हो रहा है कि वो लोग जो mid-30s mid-40s में दे आर लीविंग, और दे आर लीविंग नॉट लीविंग फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज, दे आर लीविंग फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटीज और मे बी slightly lower opportunities. और अपॉर्चुनिटी के अलावा they're trying to escape other things as well. हाँ, they're just trying to escape, just right? want to get out. अच्छा, हाँ, तो ये जो है ना, ये पाकिस्तान को बहुत डैमेज कर रहा है. क्योंकि क्यों, आपको देखें, जब आपकी कंपनीज हैं, आपकी बिजनेस हैं, आप कैसे ग्रो करते हैं? आप फाउंडर मेरी वजह से तो नहीं ग्रो करते. मैं तो आपको स्ट्रेटेजिक विजन दे सकता हूँ और मैं आपको गाइडेंस दे सकता हूँ, लीडरशिप दे सकता हूँ, लेकिन मुझे एक टीम चाहिए. अगर मुझे वो टीम ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही हो और आपको वो टैलेंट ना मिल रहा हो, देन दैट्स अ बिग चैलेंज. ठीक है. और जितना भी ये ब्रेन ड्रेन जो पिछले 2 सालों में हुआ है, आई थिंक इट इज़ हर्टिंग पाकिस्तान. और मतलब उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होंगे जो हमें फेस करने पड़ेंगे. यस, और हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं. और आईटी इंडस्ट्री के अंदर तो एक और काम है कि ऑब्वियसली कोविड के बाद बहुत सारे लोग जो है ना, बाहर की कंपनीज यहाँ पर बंदे डायरेक्ट हायर कर लेती हैं, तो उससे बहुत सारी आईटी कंपनीज की ग्रोथ के अंदर भी इशू आया. बिकॉज ऑब्वियसली somebody can pay $2,000 और either you pay more than that, लेकिन प्रॉब्लम हो जाती है. सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर जस्ट हायरिंग डायरेक्टली, राइट. कंपनीज के थ्रू हायर नहीं कर रहे, इंडिविजुअल्स को हायर करते हैं. तो उसके अंदर यस, एज अ फ्रीलांसिंग रेवेन्यू इट्स गुड फॉर पाकिस्तान, बट जब आपने किसी कॉर्पोरेट सिस्टम को खाली रेवेन्यू इज नॉट गोइंग, खाली रेवेन्यू, क्योंकि वो एक्सपोनेंशियल नहीं है, क्योंकि वो एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल नहीं है, और उस बंदे की ग्रोथ भी एक्सपोनेंशियल नहीं है. कंपनीज ये करती हैं, यस दे वुड इन्वेस्ट इन अदर एरियाज, दे वुड enhance their skill set overall, वो अपनी डिलीवरी के अंदर कुछ वैल्यू प्रोपोजिशन लाने की कोशिश करेंगे, वो अपनी प्रोडक्ट लाइन के अंदर बेहतर करेंगी, तो एट द एंड ऑफ द डे वो वैल्यू क्रिएट करेंगे, बड़ी वैल्यू क्रिएट करेंगी. अगर आपके सब लोग जो है ना वो फ्रीलांसर टाइप उस इंडस्ट्री में आ जाएंगे, तो फिर उससे ओवरऑल इंडस्ट्री का नुकसान होगा. और उसकी एक मिसाल ये है कि आपकी जो है ना, जैसे करीम एक वैल्यू क्रिएट हुई, पाकिस्तान में उसका टेक इनेबलमेंट होती थी, लेकिन GCC बेस्ड उनका फोकस था, और $3 बिलियन की एग्जिट हुआ, राइट. सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिग कंपनीज लाइक गूगल और ये और वो फलान धमाका, आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग जो हम यूज करते हैं दिन रात, राइट. और करीम के फाउंडर मुदस्सिर शेख पाकिस्तानी, लेकिन वो देखें वैल्यू क्या क्रिएट हुई, वन कंपनी $3 बिलियन, राइट. अब आप अगर फ्रीलांसिंग करते रहेंगे, कैन यू अचीव दैट? यू कैन नेवर अचीव दैट सॉर्ट ऑफ वैल्यू. प्लस with a company like Careem, the way it has changed our society, the way it has integrated itself into the very, very fabric of our reality. मतलब हमारी कोई भी अब एक्टिविटी, कोई भी कम्यूट हमारी करीम का नाम सुने बगैर कंप्लीट नहीं हो सकती. Absolutely. और हमारे मुल्क की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है कि जो नहीं खरीद सकती गाड़ियाँ या बाइक्स उनके पास नहीं है. तो this has changed so much. Careem, I've seen the whole evolution. Or freelancing will bring in the money, of course, through the right channels. But it's not going to do the kind of betterment of the society in any way. It's not going to bring about a social change. And I think our startup ecosystem jo hai, I think it should be based around improvement of our society, and there should be a larger vision at play here. So abhi aapki jo activities hain usme you have such a variety of businesses that you're looking after as well, besides doing your curating and your incubations and your mentorship. So give me a lowdown of all the variety of businesses that you're doing right now currently. So so with passage of time, obviously we diversified. I invested into different things. Have couple of real estate assets in in Nathia Gali and all. हम उसमें होटल बना रहे हैं,
So hopefully next year आपको invite Oh करेंगे yes, उधर. looking forward to that. And I have a small donut chain. That's a passion project only. I'm quite fond of that, by the way. So it's dough with the Dough flow. with the flow. So we make pretty nice donuts and very nice croissants. Probably the best croissants. And then we have a solar company. That, of course, again, from donors to real estate to startups, incubators to developing tech and changing the world in so many ways. You're working towards cleaner, greener energy and Yes. solar, and you're using AI into all of that. Yes. How does that come into play? Yeah. What's so, that about? So that is something which I'm giving my maximum time to. That's EcoEdge AI. What we are doing is we use artificial intelligence to bring down the operational cost of HVAC systems. Yeah. HVAC systems होते हैं जो बड़ी large buildings के अंदर Abhi heating hota hai, ventilation, air yes. conditioning and all that stuff that Yes. takes up so much power and energy. Yes. In a So- country where we're lacking all the power and energy, Haan. I'm sure this is So gonna it's a be- huge expense. Haan. It's a very exciting startup of ours, and what we do is we optimize energy efficiency of large buildings. Right. So हमारा जो core focus है हम उनके HVAC solutions के साथ काम करते We're हैं. talking about large commercial buildings. हाँ, large hotels, Plazas, hospitals, hotels, right. shopping malls, right. और उसके अंदर HVAC system लगा होता है, which is heating, ventilation, air conditioning. तो हम AI को यूज़ करते हैं उस पूरे HVAC को ड्राइव करने के लिए, in Right. simple words, right. और फिर उससे होता ये कि उससे ना एनर्जी कॉस्ट डाउन होती है और कार्बन एमिशंस जो हैं वो रिड्यूस होती हैं, राइट. So इस को ये reduce करने के लिए carbon emissions को, does that building need to be equipped, or are you guys doing all the work at your end and then telling them the measures that they need to implement without going to too much tech or AI? No, it's a lot of tech. So it's So they have to comply what with we a few. do. So we install our technology Right. with their HVAC. Right. So it takes like 1.5 days, right? And then our tech becomes a pilot for that entire HVAC. Okay. So हम ये करते हैं कि हाँ कहाँ टेम्परेचर ज़्यादा करना है, कहाँ टेम्परेचर कम करना है. इन वेरी सिंपल वर्ड्स, ठीक है. और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. I'm So sure. there are like 60,000 touch points which we do. Conservation of energy and efficient management, I'm it's sure been is 3 the key years there. since we have been working on it. और जब हमने किया, हमने पाकिस्तान में 3-4 जगह उसको इम्प्लीमेंट किया एंड माशाल्लाह वेरी गुड रिजल्ट्स. एंड देन जो स्केल है इट्स अ ग्लोबल प्रोडक्ट. Right. So right now we are working in UAE, in Saudi Arabia, in Oman. और उसमें फिर मुझे ट्रैवल भी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है. So that is my core focus these days. Right. AI. So this is probably your first venture where you're directly working with AI. Yes. Are you using AI in your daily life otherwise? Absolutely a lot. A lot. Where do you see this going, this whole AI thing? Is it going to replace people and talent like people are afraid of at the moment? Or is this something that we can work around and actually ideas of brains की भी ज़रूरत पड़ेगी future में? देखिए एक तो अगर वैसे आप जज करें सारे सिनेरियो को तो आपको लगेगा ये तो जॉब्स खत्म होती जा रही हैं. कंटेंट राइटर्स की जॉब्स Absolutely. खत्म होने जा रही हैं, प्रोडक्शन में जॉब्स खत्म होने जा रही हैं, कॉल सेंटर्स में जॉब्स Design, खत्म creative, mostly creative जो लोग काम कर रहे थे ना, बिल्कुल. और नहीं कॉल for सेंटर money mostly, वो काम खराब हो रहा है. फिर ऑटोनमस कार्स आ गई हैं. आपके उबर करीम के सारे ड्राइवर्स Yeah. की जॉब्स खत्म होने जा रही हैं, ठीक है. तो हर इंडस्ट्री के अंदर राइट AI विल गिव यू एन एक्सेस कि आपको बंदे की जरूरत ही नहीं है, ठीक है. आप होटल में जाते हैं चेक इन करने के लिए, आपको बंदे की जरूरत नहीं है. आप कॉल सेंटर कॉल करते हैं, आगे से बॉट आपके साथ. But do you see all that happening in Pakistan anytime soon within the next 5 years? या It will. 10-12 साल लग It will, जाएंगे क्योंकि पाँच से? कमर्शियल आपका वो है ना कि सपोज अगर कोई हम जाके किसी बड़े बैंक को कहें आपने कॉल सेंटर पर 300 बंदे बिठाए हुए हैं, वो सारे जीरो हो सकते हैं. हाँ. दे वुड जंप फॉर इट. इट्स अ प्राइवेट. तो right now call centers के लोग zero हो सकते हैं, हो सकता है, right? हो सकता है. So we should all be Absolutely. very very scared. हाँ, एब्सोल्युटली. लेकिन देखिए अगर आपने दुनिया में ट्रांजिशन देखे ना, मतलब ये जो है ना डर, ये आई थिंक Ultimate पहले भी transition. होता होगा, ठीक है. पहले होता होगा. पहले भी होता होगा कि पहले जब आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी तो बहुत सारे लोग कहते होंगे कि ये तो मशीन पे चीज़ें बनना शुरू हो जाएंगी, तो ये तो हमारी तो जॉब खत्म हो जाएगी, Absolutely. हमारा काम खत्म हो जाएगा. बिल्कुल. फिर बिल्कुल, आपकी for sure. फैक्ट्रीज के अंदर ऑटोमेशन आना शुरू हुई तो उन लोगों की जॉब्स खत्म हो गई, ठीक है. Advertising industry, marketing industry, creatives, design, television, आपकी बहुत सारी चीजें ऐसी change हुई जिसमें आप, if you look back at pictures from like 30, 40, 50 years ago, you see a big room with like 100 people sitting with their plotters and their big canvases. वो सब उन्होंने reduce कर दिया कंप्यूटर पे. Yes. अब वो कंप्यूटर से वो चिप्स में बात आ गई, Yes. चिप्स से अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात आ गई.
और फ्रैंकली आई डोंट नो हम लोग इस काम के लिए तैयार हैं कि नहीं. सो मेरा ये ख्याल है कि आई थिंक ओनली टाइम विल टेल, क्योंकि जो है ना आपकी एसोसिएटेड जॉब्स या दूसरी जॉब्स या कुछ ना कुछ आएगा, मतलब मेरा कुछ ना कुछ होगा. मतलब पुरानी भी ट्रांजिशंस को देखें. I read this forecast by someone very prominent कि अगले 20 से 30 साल में डे जॉब्स खत्म हो जाएंगे. Do you see that happening? आई थिंक सो. 9 to 5 खत्म हो रहा है. मतलब मेरे लिए पर्सनली तो खत्म हुई है, लेकिन हाँ, मतलब you never believe in any way, but 9 to अगले 5 20 तो साल में. आई डोंट बिलीव इन दैट. लेकिन काम करना है तो फिर तो काम करना है. लेकिन आई थिंक कि खास तौर पर ये जो ट्रांजिशन आया है ना कि गोइंग टू एन ऑफिस टू वर्क, ये तो डेफिनेटली ख़त्म हो गया. Yeah. अभी भी ख़त्म हो गया है. ठीक है. यू डोंट, ऑल्दो आई एम अ बिग एडवोकेट, आई वांट टीम्स टू काम. I think productivity में थोड़ा सा फर्क पड़ता है. If you're working in a team environment, your ideas get validated, you learn a lot from the people and your peers around you. और जब आप work from home कर रहे होते हैं तो you're practically working and only working with what you have on the resources that are there in front of your screen, या आपके मोबाइल पे हैं या आपके कान में कोई चीज़ लगी हुई है. बट आई थिंक ये ह्यूमन इंटरेक्शन जो है ना काम में ये होना चाहिए. और घर से निकलने की एक सेंस भी एक बड़ी अच्छी सेंस होती है यार कि आप सुबह उठें, घर से बाहर निकलें, तैयार हों. एब्सोल्युटली. बेड में बैठ के काम नहीं कर रहे, राइट? ये बहुत बड़ा मसला है. एब्सोल्युटली. तो ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी तो आई डोंट नो हाउ वी आर गोना फंक्शन एज अ सोसाइटी. मुझे थोड़ा सा आई एम स्केयर्ड फॉर माय किड्स. ऐसे आई थिंक देखिए इसके कुछ ऑन द अदर हैंड कुछ फ़ायदे भी हैं कि लोग जो है ना वो कहते हैं ऑफिस जाने के लिए आपको खर्चा करना पड़ता है, ऑफिस में खाना खाना है, कपड़े लेने, ड्राइव करके जाना है. That's the cost of human interaction. Absolutely. वो तो आपका जो बिजनेसेस हैं वो कह रहे हैं कि हमें ऑफिस रखना पड़ता है, बिजली का खर्चा देना पड़ता है, ये करना पड़ता है, गार्ड्स रखने पड़ते हैं. लोग घर में बैठकर अपना इंटरनेट यूज कर अपने खुद ही कर रहे हैं, राइट? सो दोनों पर्सपेक्टिव है, राइट? फाइनेंशियली इज वायबल, टेक्निकली इज वायबल, बट आई थिंक सोशल इसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं Absolutely. वो भी हम इस बारे में सोच नहीं रहे. एंड आई थिंक नेक्स्ट जनरेशन हमारी भुगतेगी इन सब चीज़ों को. हाँ, बड़ी आज नेक्स्ट जनरेशन के बारे में मेरा तो ये ख्याल है कि वो चाइनीज़ का एक वो है मुहावरा है कि मे यू लिव इन इंटरेस्टिंग टाइम्स. ये इतनी अच्छी विश नहीं होती, ये बुरी विश होती है, राइट? कि मे यू लिव इन इंटरेस्टिंग टाइम्स. वी आर ऑलरेडी लिविंग इन वेरी इंटरेस्टिंग टाइम, Probably the most interesting times ठीक है. man व्हाटएवर can इज ever हैपनिंग seen. इन द एंटायर वर्ल्ड एट दिस पॉइंट टाइम. लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन है वो डेफिनेटली दे विल फेस अ लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि एक तो एआई की सारी इंक्लूजन आ गई है, फिर उसके अलावा ये सोशल बिहेवियर्स जो हैं इनके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है. यार सोशल बिहेवियर्स तो मैंने चेंज होते देखे हैं. एज आई हैव ग्रोन times have changed and I've realized that the youth 20 years ago, the youth right now, socially, I mean, we're so different from each other. जब हम लोग काम स्टार्ट कर रहे थे, कोई भी काम कर रहे थे, the way we put ourselves to the work, the way a lot of us took feedback, a lot of us handle our emotions or handle emotions of people around us. Everything has changed now, hasn't it? Absolutely. And it's all downhill from here, isn't it? मतलब मुझे तो लगता है नेक्स्ट जनरेशन बड़ी थोड़ी सी बदतमीज भी है, राइट? सो जो हमारे लिए जो हमारी वैल्यूज थी, मतलब लाइक फॉर एग्जांपल मेरे फादर या मेरे दोस्तों के फादर, व्हेन दे यूज्ड टू वॉक इन, द वे वी यूज्ड टू मीट फैमिली, द वे द सोशल नॉर्म्स वी हैड, आई थिंक थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट. Gen X और millennials हम लोग we used to give respect. एक आपकी स्टैचर को देख के, नॉट दैट यू हैड टू अर्न इट. अगर आप बड़े हैं उम्र में या सीजनड हैं, अब वो ये नहीं बात है कि कैसे यार बाल तो सबके सफेद हो जाते हैं बड़ी छोटी सी उम्र में. प्रीनियल्स, राइट? सो वो अनफॉर्चुनेटली हम वो वाहिद जनरेशन है जो अपने माँ बाप से भी डरते थे और अब अपने बच्चों से भी डरते हैं, राइट? और दोनों के कंट्रोल में, राइट? सो वी आर द ओनली जनरेशन. आई डोंट नो फ्यूचर में कैसा होगा, लेकिन डेफिनेटली वी आर गोइंग थ्रू दैट फेज. और पाकिस्तान का जो जनरली हालात कंसिडर किए जाते हैं, अगेन मैं व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप तब भी कभी मैं यही दिखता था, हर वक्त सुनने में मिलता था कि हालात ठीक नहीं है, हालात अच्छे नहीं हैं, हालात बेहतर हो सकते हैं और आज भी बेहतर होने की तरफ ही जा रहे हैं. डू यू सी कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं पाकिस्तान के लिए और आम लोगों के लिए ओवर द नेक्स्ट 5 years? व्हाट इज योर साइबर विजन? टेल अस. साइबर विजन, यस. कंट्रोवर्शियल सवाल पूछ रहे हैं आजकल के हिसाब से. देखिए मैं डिफरेंट लोगों से बात करता हूँ तो मैं कहता भी हूँ कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं ना अपनी लाइफ स्पैन के अंदर पाकिस्तान की ग्लोरी देखूं, ठीक है?
And glory besides sports, by the way. Glory beside नहीं वो भी Sports में तो I know you. I was there when I'm going to come to that, by the way. I'm won going to the come to match that. 152-0 Right. जो पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप, so वो glory तो definitely there, Right. but other than sports, you're right. क्योंकि when you travel abroad and visit different countries और जब आप वहाँ पे development देखते हैं, लोगों की overall progress देखते हैं, business होता हुआ देखते हैं, economic activity देखते हैं, तो दुख होता है डेफिनेटली कि हम हर तरीके से ना बहुत डिटोरिएट करके एज अ सोसाइटी और शायद और से और ज़्यादा करते जा रहे हैं, ठीक है। और उसके क्या कोर रीजंस हैं, क्या वो एजुकेशन है या हमारा सोशल फैब्रिक जो है ना वो सही नहीं रहा या हमारे इकोनॉमिकली हम इतने पीछे चले गए, तो दुख होता है डेफिनेटली। सो लेकिन वो जो होप है कि काश पाकिस्तान के ग्लोरियस डेज हम देखें, वो होप इज स्टिल अलाइव एंड किकिंग एंड यू नेवर नो। देखेंगे, मुझे लगता है कि वी विल कम बैक टू आवर ग्लोरी डेज, और हम ही तो खैर नहीं शायद उस टाइम तक होंगे, बट जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, जेन जी जो है, some of them are like really amazing people, and sure बहुत सारे social differences ज़रूर हैं हमारे अंदर, the way we think, but they're a generation on a mission. और globalization and the opportunities that they're having right now, वो हमारे पास नहीं है, मगर इनके पास हैं, and they're going to make the most of it. So glory days पे जाने के लिए do you have any advice कि individually हमें क्या करना चाहिए? मतलब holistically तो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें जो हमारी गवर्नमेंट को भी देखनी चाहिए, हमारे प्राइवेट सेक्टर को देखनी चाहिए, but individual level के ऊपर हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि we go back to the glory days of Pakistan? I think देखें आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। मेरे पर्सपेक्टिव में ये जो मैं खुद करता हूँ, ठीक है, वो ये है कि तिजारत मुकद्दस तरीन पेशा है, राइट, ठीक है, रिलीजन भी ये कहता है, Absolutely. राइट। और अगर आप अपना बिजनेस करते हैं ना, तो आप ना एक लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। और अगर आप कोई ऐसा बिजनेस कर सकते हैं जो बाहर से पैसे आ सकते हैं, तो वो आएंगे। जब तक वो पैसे पाकिस्तान आ रहे हैं, ठीक है, बाहर से आ रहे हैं, या आप यहाँ पे लोगों को जॉब्स दे रहे हैं, तो एसएमई सेक्टर की ग्रोथ जो है ना बड़ी वाइटल है। और एसएमई सेक्टर की जो ग्रोथ है वो मेरे और आपके हाथ में है, राइट, ठीक है। वो जो सारे चैलेंजेस है, वो इतना बड़ा मुल्क है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लोगों को अब एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, दुनिया से सीखें। यहाँ पर लोग बैठकर अमेज़ॉन पे जो है ना चीज़ उठाते हैं चाइना से और डिलीवर करते हैं ब्राज़ील में, हो रहा है ना, राइट। सो अगर आप ये करना शुरू कर देंगे और ये सोचना बंद कर देंगे कि जी सरकार ने हमारे लिए करना है, अगर ये चीज़ अपने हाथ में ले लेंगे ना, और जब आप इकनॉमिकली आपके सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर होंगे, एजुकेशन ऑटोमेटिकली बेहतर होगी, ठीक है, आपकी हेल्थ ऑटोमेटिकली बेहतर होगी, न्यूट्रिशन ऑटोमेटिकली बेहतर होगी, तो कौम में बेहतरी आएगी। तो मेरा तो बिलीव है कि आप जो है ना लोगों को जो बिजनेस करना चाहते हैं उनको प्रमोट करें, उनकी सपोर्ट करें, और हमें भी एज अ पाकिस्तानी चाहिए कि जो हमारे छोटे बिजनेसमैन होते हैं हम उनको सपोर्ट करें, राइट। वर्सेस कि हम कहें यार फलाने ब्रांड की चीज़ें लेनी है, फलाने ब्रांड की लो पाकिस्तानी को, बेशक अभी क्वालिटी बुरी है ना, सही हो जाएगी। सो बेसिकली अगर एक आम आदमी की तरफ की बात की जाए तो बड़े कैश एंड कैरीज में जाने से बेहतर है कि किराने स्टोर से शॉपिंग की जाए। मैं तो उसको प्रमोट करूँगा डेफिनेटली। आई एम ऑल्सो अ बिग बिलीव इन दैट। कुछ ऐसी अगर शॉप से काम की चीज़ मिल रही हो तो आई नेवर हेजिटेट बाइंग फ्रॉम अ स्मॉलर शॉप एंड अ स्मॉलर वेंडर। एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, सोसाइटी में हमारी चेंज आ गई है। आवर बिजनेसेस and generally people who are not in a 9-to-5 job, they tend to start their days a little late. How does Murtaza start his day? Do you start your day early, and do Absolutely you go early. out and grab the day early Absolutely on? early. Is that something that everybody should like go back to? Yeah, is it okay to start the day at 11? I don't know how people function when they Yeah, start their right. day at 11, right? This is one of my So- biggest issues with the world that I'm living with right now. कि आपने किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के अलावा किसी बंदे से अगर बात करनी है तो 11 से पहले nobody's ever available. I I think think that that has is really affected us holistically as a society. So there used to be a time when I used to be in office at dot 8:30 or 9. Right. But now I go to gym at 7:30 a.m. That's the best time to work out. उससे पहले usually from 6:30 to 7ish when I start my day. And जब आप टाइम के ऊपर काम शुरू करते हैं ना, आप बहुत सारा काम एक्स्ट्रा अचीव कर पाते हैं, राइट। और सुबह के टाइम के ऊपर एक डिफरेंट किस्म की बरकत है, और And इसमें what कोई is the शक reason? नहीं है। There's a आप different किसी sort of a भी bucket. कल्चर में चले जाएं, Yeah. आप रिलीजियस कोई भी टेक्स्ट उठा के देख लें, सुबह की जो है ना जो एक टाइम की जो फकीयत जो आपको बताई जाती है,
वो यूनिवर्सल है. ऐसी है. It's a truth कि if you wake up early, the world is a different world for you. And a lot of people don't realize that anymore. I think वही freelancing, night shifts में बाहर के साथ काम करना, generally थोड़ा सा एक sense of lethargy और laziness भी आ गई है society के अंदर over the past 15-20 years. I've seen the whole thing. Bad food, late night. Bad food. बुरे food भी खाई, ये भी किया. I think ये इन चीज़ों को fix करना बड़ा ज़रूरी है. और मतलब long term effects हैं. आपकी health खराब हो रही है. Yeah. Right? So people don't realize. चंद दिन पहले किसी ने मुझे एक तस्वीर भेजी. उन्होंने कहा जी हमारे सारे के सारे एक ही क्लास फेलोज की है. यू नो वी वर अ बैच ऑफ फॉर एग्जांपल 2004 राइट. और उस तस्वीर को देख कर मैं देख रहा था कि देयर वर पीपल हु लुक प्रीटी यंग एंड फ्रॉम द सेम बैच देयर वर पीपल हु लुक लाइक एज इफ कि वो उनके डैड हैं. इतना एज डिफरेंस नज़र आ रहा था राइट. सो अगर आप हेल्दी एक्टिविटीज़ नहीं करते तो डेफिनेटली आपकी वर्क प्रोडक्शन के ऊपर ज़रूर अफेक्ट पड़ता है. सक्सेस के लिए कोई सॉलिड कोई एक मैजिक फॉर्मूला तो नहीं है. बट सक्सेसफुल लोगों को देख के ऑब्जर्व करके कुछ चीज़ें आप अक्स कर सकते हैं कि यार हैबिट्स में क्या बंदे को चेंज लानी चाहिए. आई थिंक उसमें क्रिटिकल हैबिट होनी चाहिए टू वेक अप अर्ली. और इफ़ पॉसिबल अगर आपका काम आपको इजाज़त देता है उठने की, सुबह उठना चाहिए. यू स्टार्ट द डे फ्रेश एंड योर माइंड इज लाइक रेसिंग एट अ डिफरेंट पेस इफ यू अर्ली इन द मॉर्निंग, इफ यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. इसके अलावा how do you spend your days, how do you spend your time? Do you actually even get time like for yourself after doing so many things in your average day? I do get time. Yeah, I do get time. How do you spend your time? So at times you should look more busier than you are, right? Is that the case with Murtaza Zaidi? No, so there are times देखें when you're running your own business, or I think this would go true for every businessman. Yeah. There are days when you are very busy और वो आपकी जो है टास्क लिस्ट खत्म ही नहीं होने को आती. Right. बट देन यू फाइंड योर मोमेंट्स एंड योर डेज राइट एंड देन यू ट्रैवल एंड आपकी लाइफ अपने हाथ में होती है ना, तो आप बहुत सारी चीजें एडजस्ट कर लेते हो. Do you believe in physical fitness? Are you working out or something? हाँ, you advised me, remember? And yes, and you took that advice, yeah? I took that advice. I lost like 11 kg so far after taking your advice, eating healthy and all. Well, I haven't spoken to the audience in this entire podcast. So guys, me and Murtaza, we're like long-time friends as well. And हम लोग परेशान भी रहते हैं society के लिए भी और एक दूसरे के लिए भी कभी-कभी. So we often share advice. और हम लोग healthy eating और healthy living को promote भी कर रहे हैं और adapt भी किया है lately. बहुत पहले से नहीं किया. और I'm glad that you've converted as well. Yeah, that's brilliant. Absolutely. Sports चल रही हैं? Sports nahi, working out in the gym. Yeah. You're a big cricket fan. Big time. How does the current state of cricket in Pakistan affect you? Well, I think day before yesterday, Babar Azam played really nice. He did, didn't he? He did. I loved his innings. What was different? Why was Babar Azam playing so well? Because at the time of recording this podcast, Babar Azam has made a comeback. So has Trump, by the way. But Babar Azam. देखिए, I think he's definitely the best ever batsman we have produced. मतलब परसों के मैच में ना बड़ा एविडेंट था कि बाकी जो बैट्समैन आ रहे हैं वो किसी का कोई एज लग रहा है, कोई उधर खेल रहा है, कोई उधर खेल रहा है, राइट. सो वो लग रहा था गली मोहल्ले वाली क्रिकेट है. बाबर आजम की हर शॉट ऐसी लग रही थी कि भाई ये तो जैसे इसके लिए एक नेचुरल है. इट्स लाइक ही वाज सो मच एट ईज. उनके कंधों से प्रेशर उतरा तो कोई फर्क नजर आया स्ट्रेट वे, राइट. वो भी आई थिंक देखें, विराट कोहली के ऊपर भी बुरा टाइम आता है, हर एक के बुरा टाइम आता है. अच्छा टाइम गुजर जाता है तो बुरा टाइम भी गुजर जाता है. So, but the way Pakistani cricket team played was heartening to see, right? They were not giving up. So that's sports में आपने हारना है, जीतना है, कोई बात नहीं, होती रहती है. हार जीते बगैर तो अब अपनी टीम में सपोर्ट तो करेंगे, जो चाहे हो. As long as आप जो एक्सपेक्टेशन है एटलीस्ट उसकी तरफ ट्राई करते हुए आपको लोग नजर आए तो आपको अच्छा एक हार्टी फीलिंग होती है. बट वो ये कि most of us have been disheartened for a very long time. क्योंकि हमें वो एफर्ट होती नजर नहीं आ रही थी. So I'm glad that we've seen some improvement there, and I'm sure it's gonna get even better. Inshallah. So Murtaza, thank you so much for taking time out and joining me on Upper Deck. I know that you're a busy person, but I would love to have you over again one of these days. Done. So thanks a lot. Thank you, Zim. Pleasure to be here. Thank you so much for watching this podcast and for making it so far into the show. This is Upper Deck with me, Zin. This is season 2 of the show, and this is the place where we are going to have some amazing discussions with professionals and leaders, entrepreneurs, business professionals, ऐसे लोग
जो बहुत कुछ बदली कर रहे हैं इस सोसाइटी के लिए, इस इकोनॉमी के लिए, हमारे यूथ के लिए. तो keep watching, and if you liked what you saw here, make sure to like, to subscribe, and I'll see you guys in the next episode. Thank you.